હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર 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 હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ અસીમ જય જયકાર હો. દાદા બોલો દિવ્યાબેન. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દક્ષ દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. Jai Sachidanand. Thank you, Deepak. This is Deepakanji. Jai Sachidanand, Keshwandi will come another 10-15 minutes. So I am there. Okay. Okay, Trimantra bolao. Jai Sachidanand. Jai Jai Namo Sachidanand. Mitra Gai. નમો ઉત્તરાગાય. Namo Arihantanam. નમો અરિહંતાનમ. Namo Siddhanam. નમો છિદ્દાનમ. Namo Ayariyanam. નમો આયોરિયાનમ. Namo Vajjayanam. નમો વજ્જાયાનમ. Namo Loe Sava Sahunam. નમો લોએ સવ છૌનમ. Aisho Panchanamukaro. આચો પંચનમુખારો. Savapavapranasano. સર્વ પાવ પનાશનો. Mangalanam cha Savesim. મંગલાનમ ચ વેચિમ. Paramam Havai Mangalam. પદ્મમ હવે મંગલમ. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. Om Namah Shivaya. ઓમ નમઃ શિવાય.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिताक्षी बा। दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति करें कि मैं अपने हेल्थ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूँ, ताकि मेरा शरीर के साथ है। मुझे मेरे नियमों की पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायता बने। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और किस्म से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया प्रयोग और अपने आत्मा को उपयोग केवल परस्पर यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूँ, जो कि सबसे बड़ा मानव। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे महिला पर्सनैलिटी बन पाऊं। जी दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प देती हूँ और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संदर्भ में मुझे अमुक आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दाक्ष। ही दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सबको तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए, विपड़क से ढक कर स्तुति परम शक्ति जय सच्चिदानंद। दिव्याबेन। हे दादा भगवान, हे हे दादा भगवान, अपने आपके बच्चे, हमें आपके आपके बच्चे। हम दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे। कर भी है कच्चे, पीर भी दिल है भी है सच्चे, कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे अच्छे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। ओके दाक्ष। हे श्री दादा को आप अलग को सबसे लगे, हे शरण माता को ना परमानेंट और रेफ्रिजरेटिव, हे शरण माता को ना टेम्परेरी रिलेटिव जय सच्चिदानंद। दिव्याबेन। હે સુતારમાં દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દિવ્યા જુદી છે. હે સુતારમાં દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, દિવ્યા ટેમ્પરરી છે. હે સુતારમાં દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દિવ્યા જુદી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. તમે ભૂલી ગયા એક. हिताक्षी बा। हाँ। बोलो। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, દક્ષિણા જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે દેવ છો, દક્ષિણા દેવ છો. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, દક્ષિણા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. दिव्याबेन તમે रिलेटिव भूली गया था। रियल रियलिटी। हाँ। ओके। हिताक्षी बा होमवर्क क्या था? हाँ, होमवर्क ये था कि हमने मम्मी को कितनी बार अनहैप्पी किया और कितनी बार हैप्पी किया। ओके। बोले किसके बारे में आप हैप्पी करते हैं, किसके बारे में अनहैप्पी करते हैं? हाँ, किसके बारे में हैप्पी करते हैं, किसके बारे में अनहैप्पी करते हैं, बोलिए। हाँ। ऐसे कल तो मम्मी को पास में हैप्पी आके किया। जरा जोर से बोलो। कल तो मैंने मम्मी को हैप्पी किया था, आज मम्मी को एक बार अनहैप्पी कर दिया था, क्योंकि मम्मी और वो बाहर जा रहे थे तो मम्मी ने आटा गूंदने को बोला था, तो मम्मी आए बाद में आटा गूंदा मैंने, इसीलिए। ये तो आपने एक दिन बोला, पर जेनेरिक कल बोलने का जेनेरिक जेनेरिक है कितना होता है? ओके, लाइक 1 मंथ, लास्ट 1 मंथ में आप कब हैप्पी करता है, कब अनहैप्पी करता है? ओके हाँ। ओके दक्ष। जय सच्चिदानंद। मैंने
मैंने आज मम्मी की सेवा करके मम्मी को हैप्पी करा था। क्या किया था? मैंने आज मम्मी की सेवा करके हैप्पी करा था, और आज मैंने स्केटिंग अच्छे से करके हैप्पी करा था। और अनहैप्पी? दादा मैंने पढ़ाई नहीं करी, उसके लिए मैंने मम्मी को भी अनहैप्पी करा है। क्यों, आपको पढ़ाई क्यों नहीं अच्छा लगता है? आपको मम्मी का दुकान में झाड़ू मारने का काम मांगता है? नहीं। तो पढ़ेगा तो ही अच्छा बिजनेसमैन और इंजीनियर और कुछ हो सकता है ना। ए तोरल, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्या हो गया? आप तो लाइट में आ गई। अच्छा, आपको सुनाई देता है? New computer. क्या चेंज किया आपने? क्या? आपने क्या चेंज किया? अभी तो लाइट भी आ गया, कुछ कुछ सुनाई देता है। आप कुछ चेंज किया? हाँ। ओके, बोलिए। क- मम्मी को कब कब अनहैप्पी करते हैं, कब कब हैप्पी करते हैं? मैंने मम्मी को अनहैप्पी किया क्योंकि मेरी मम्मा ने जो मुझे पढ़ाई करने का जो सब्जेक्ट करने का बोला वो मैंने नहीं किया। और हैप्पी किया था तो मम्मी की हेल्प की सब चीजों आज मम्मी ने टास्क दिया था जमाने का वो। ओके। પિતાજી બા, તમે મમ્મીને ક્યારે હેપી કરો છો, અનહેપી કરો છો? મમ્મી ને છે ને હમ હું જ્યારે હું જે એક જ્યારે હું હેપી કરું છું, જ્યારે હું થોડી પાછા મૂકી દઉં છું, સારી રીતે વાત કરું છું. હમ. અને અનહેપી ક્યારે કરો છો? જ્યારે હું થોડી બળ જ રાખું છું અને પછી છે ને હમ. હું રૂડલી વાત કરું છું. तो ये मम्मी के हैप्पी करते हैं और अनहैप्पी करते हैं तो चलता है? એવું ચાલે કે મમ્મીને થોડો ટાઈમ હેપી કરવાનો, થોડો ટાઈમ ના હેપી કરવાનો? એવું ચાલે ના દિવ્યા? તો શું કરવું જોઈએ? હેપી રાખવાના. ઓલ ધ ટાઈમ? હા. ओके। दक्ष, आपका ये हिसाब कैसा है कि कभी हैप्पी करते हैं, कभी अनहैप्पी करते हैं? हाँ और सही ढंग है? दादा। हाँ होता है। ये सही ढंग है कि नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ। सही ढंग है कि नहीं सही ढंग है? दादा सही ढंग नहीं है। तो क्या दादा के पास क्या मांगने का होता है? माफी। ओके, हिताक्षी बा, हाँ થોડો ટાઈમ મમ્મીને હેલ્પ કરવાની, તો મન હેપી કરવાનું, એવું ચાલે? ના તો શું કરશું આપણે પ્રતિક્રમણ મમ્મીના પછી? અને દાદા પાસે શક્તિ માંગશો. દિવસમાં કેટલી વાર માગો છો તમે? આજે તો નથી માંગી. ना, तो उससे नक्की करना पड़ता है एटलीस्ट कम से कम सुबह उठ के ये प्रेयर में रख देने का है कि नो मैटर व्हाट, मैं मम्मी को हेल्प करना चाहती हूँ सारा दिन। ठीक है? और हाँ तो ये चलेगा? मम्मी को हैप्पी करने का, नहीं हैप्पी करने का, वो चलता रहता है। तो क्या करेंगे आप? माफी मांगे। और बाद में कति कम कर से तो हो जाता है। ओके, केशव दादा अनम्यूट कीजिए। डिस्कनेक्ट। हाँ, तो ये चलता है कभी कनेक्शन सक्सेसफुल। जान हैप्पी, कभी एक करने का, वो चलने का मम्मी को नहीं चल सकता?
ऐसा तो बिल्कुल नहीं चल सकता है। हमेशा क्या होना चाहिए कि हमारा एक ही ध्येय रखना चाहिए कि भाई कुछ भी हो। दादाजी क्या बोलते हैं कि भाई अदबद नहीं रहने का, थोड़ा आधा इधर आधा उधर। 100% कुछ भी करने का, 100% रिजल्ट लाने का। निश्चय करने का तो 100% करने का। फिर वो क्या है, कभी आधा इधर हुआ आधा उधर हुआ, कभी थोड़ा अच्छा किया थोड़ा बुरा किया, तो उसमें 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 क्या होता है कि फिर वो मन क्या है एक बार बंध नहीं जाता है। फिर मन को क्या है, ऐसा ऐसा फ्रीडम मिल जाता है कि चलता है। कभी ऐसा हो गया तो भी वांधा नहीं है। मन को जितना भी हो सके फ्रीडम नहीं देने का। मन के साथ एकदम पक्का होके, उसके साथ मन के साथ अपने मन को निश्चय में लेके आने का। हमको ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दादा क्या बोलते हैं कि आप जैसा निश्चय करोगे वैसा आपके सामने सब आ जाएगा। आपका निश्चय कच्चा होगा तो सब कुछ कच्चा हो जाएगा। फिर आधा अच्छा भी होएगा, आधा, जितना आपका मनोबल होगा, जितना आपका निश्चय होगा, जितना आपके अंदर ऐसा होगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये रिजल्ट लानी है, तो फिर क्या है, नेचर आपको हेल्प करेगा। दादा भगवान आपको हेल्प करेंगे, देवी देवताओं हेल्प करेंगे, सब लोग आपको आके मदद करेंगे। तो आपके ऊपर है कि आपको कैसा रखने का है। आपको क्या लगता है कि आपको 100% रिजल्ट चाहिए या 50% रिजल्ट चाहिए? दादा 100%। हाँ, तो अगर हमको 100% रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको 100% मार्क्स लानी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? दादा पढ़ाई। हाँ, सिंसियर पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि आपकी रिजल्ट 100% आए। पर अगर आप 50% पढ़ाई करोगे तो 50% रिजल्ट आएगा। आपके निश्चय के ऊपर है, आपके अंदर आपको कौन सा रिजल्ट चाहिए, वो आपको डिसाइड करने का सबसे पहले। और एक बार वो डिसीजन हो जाएगा ना, तो फिर कभी ऐसा कभी वैसा कभी नहीं होगा। वैसा ही होगा जैसे आपके अंदर में आपने पक्का निश्चय किया है। ये नियम है कुदरत का। अभी आप क्या करोगे, कैसा निश्चय करोगे? त्याग सेवा। कैसा निश्चय करोगे? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ, अब से मैं ऐसा निश्चय करूंगी कि मम्मी को दुख ना पहुंचे, से मम्मी हैप्पी रहे। हाँ, नो मैटर व्हाट, वो ऐड करना मांगता है ना, त्याग सेवा। हाँ नो मैटर व्हाट, यू टू ऐड दैट। फिर बोलिए, हाँ। वापिस बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। नो अभी मैटर तो व्हाट। यू टू नो ऐड नो मैटर। मैटर व्हाट। हाँ, ओके, रिपीट करो। नो मैटर व्हाट। नो नो, आपकी प्रेयर, नो रिजोल्यूशन प्रेयर, आपको रिजोल्व क्या करने का हो, रिपीट करो। व्हाट्स योर डिसीजन? मेरा डिसीजन यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मम्मी को हैप्पी रखना है। वेरी गुड, वेरी। और क्या करेगा? प्रेयर एवरीडे। बस मम्मी से प्रार्थना करूँगी और दादा से शक्ति मांगूंगी कि मैं प्रेयर, मम्मी को खुश। प्रेयर बताओ ना, प्रेयर हमको सिखाओ। ऐसे कि हे दादा भगवान, मम्मीने કોઈ પણ આજ દિનથી અધ્યક્ષ પર્યંત મમ્મીથી મમ્મીને હવે દુઃખ ના દઈ હંમેશા સુખ જ આપો, એવી તમે મને શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। ऐसे प्रेयर करूंगी शायद। वेरी गुड। क्यारे करसो, कब करेंगे? आज रात से। दिन में कितने दफा करेंगे? हाँ, दिन में कितनी दफा करेंगे? दिन में 5 बार। ઓ વેરી ગુડ, ઓકે। દિયાબેન, શું કરશો તમે મમ્મીને અનહેપી નહીં કરવા માટે? પ્રાર્થના બોલાઈશ।
હિતાક્ષી બેને પ્રેયર કઈ તમને સાંભળી? હા યાદ છે? હા બોલો. યાદ અમને નથી બટ હે પપ્પા કહે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હિતાક્ષી બા ટીચ કરો. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, મેં આજ સુધી મમ્મીને જેટલા બી દુઃખ આપ્યા હોય મેં આજ સુધી મમ્મીને કેટલા બી દુઃખ આપ્યા હોય તેની હું માફી માંગુ છું હું માફી માંગુ છું અને હવેથી હું નિશ્ચય કરું છું અને હવેથી હું નિશ્ચય કરું છું કે ગમે તે થાય કે ગમે તે થાય હું મમ્મીને સુખ જ આપીશ. હું મમ્મીને સુખ જ આપીશ. એવી તમે મને શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. એવી તમે મને શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. હવે યાદ રહેશે? હા કેટલી વાર કરશો? 5 વાર. वेरी गुड. दक्ष, तोरल आपको मालूम पड़ गया? हाँ. Okay, Deepika ji, you want to say 2 words? क्या? અહીંયા જે તમે કીધું ને મેં દુઃખ આપ્યું હોય, ના દુઃખ આપ્યું છે કહેવાનું હા હોય એટલે મેં નથી પણ આપ્યું એમ કરીને દે ના, પણ આપણાથી દુઃખ થયેલું છે એટલે જે જે દુઃખ થયા છે તેની હું માફી માંગુ છું. ફરી એવા દોષો નહીં કરું. દાદા મને શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. આપણે જ્યારે હોય કહીએ ને, હોય એનો મતલબ થાય કે હજી આપણને એમ થાય છે કે મેં તો દુઃખ આપ્યું જ નથી. સમજાયું હિતાક્ષીબા? હા આજ લગી જે જે દુઃખ આપ્યા છે, હા દિવ્યાબેન સમજાયું તમને? હા दीपिका કે जी, જે हिंदी में હોય ट्रांसलेट ને करो ત્યાં, प्लीज. હા हिंदी में ट्रांसलेट करो. हाँ, आज तक मैंने मम्मी को जो जो दुख दिया है उसकी मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ. मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, और फिर से ऐसे दोष कभी भी ना करूं. ऐसी है दादा भगवान, आप मुझे शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो. ओके दक्ष, तोरल હા દાદા. मालूम पड़ गया? હા યસ. ओके ओके दक्ष, आज क्या आपने सीखा? दादा आज मुझे ये सीखने को मिला कि हमें हमेशा मम्मी को हैप्पी रखना है. ओके तोरल, मैंने ये सीखा कि हमको मम्मी को नानी बोलना है और उन्हें सिंसियर रहना. वो दूसरा कुछ नहीं सीखा? टैक्सी बा? आज मैंने ये सीखा कि हमें पक्का निश्चय करके मम्मी को दुख नहीं देना है, सुखी देना है, चाहे कुछ भी हो जाए. हमें अपने डिसीजन पर अटल रहना है. वेरी गुड. नो तोरल, यू हैव टू रिमेम्बर दैट. प्रतिज्ञा करके और प्रार्थना करने का. દિવ્યાબેન શું આજે શીખ્યા તમે? છે ને મમ્મા છે ને બધી વાર છે ને બધી વાર મમ્માને ખુશ રાખવાનું અને પછી પ્રાર્થના કરવાની. ઓકે, વેરી ગુડ, થેન્ક યુ. ઓકે, હોમવર્ક હિતાક્ષીબા. લાસ્ટ थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स जो आप मम्मी को हैप्पी करते हैं एंड अनहैप्पी करते हैं. ओके, नॉट वन डे, ऑल द थिंग्स यू कैन रिमेम्बर. ओके, प्लीज ये पॉज करो. ओके ओके दिव्या बहन,
હા મમ્મીને પપ્પાને મમ્મીને પૂછજો કે તમે ક્યારે ક્યારે તમે એમને દુઃખ આપો છો, ક્યારે ક્યારે એમને સુખ આપો છો. ઓકે હા ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આનંદ. જય જય સચ સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે કેશવાનજી, હવે આપણે છે ને હાજી. એક જ મિનિટ. આપણે હવે પદ સાંભળીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. અનન્યાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે અનન્યાબેન, કેશવાનજી કન્ટિન્યુ કરશે. તમે આઈ થિંક હસો પેલા. હા. દાદાશ્રી ભગવાન શું કહે ભગવાન એનું કહે. હા. ક્યાંથી હતું? 34. હા રાઈટ. ઓકે ઓકે દેખાય છે? હા. હા ઓકે ઓકે અનિલબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્જન કરવું એ નિજ સત્તા, વિસર્જન એ પર સત્તા છે. સર્જન કરશો તેવું વિસર્જન દાદા શ્રી ભગવાન કહે. જે સમજ્યા તે સમય બેઠા, નહીં સમજ્યા તે વાદ વધે. નિજ સ્વરૂપમાં સમાઈ જાઓ, દાદા શ્રી ભગવાન કહે. પાર વગરનું સુખ અંદર છે, એવી જ્યારે ખબર પડે. બહાર સુખની ખોજ તો અટકે, દાદા શ્રી ભગવાન કહે. આત્મામાં તો કેવળ સુખ છે, બહાર ચીજમાં કદી નહીં. સ્વરૂપનું એ સહજ સુખ છે, દાદા શ્રી ભગવાન કહે. વ્યવહારો તો સદા અપેક્ષિત પરિવર્તન નિત થયા કરે. સમતા ભાવે ઉકેલ લાવો, દાદા શ્રી ભગવાન કહે. દુઃખ દેનારો માત્ર નિમિત્ત છે, દોષ છે મારો એમ સમજો. ધર્મ ધ્યાન એ શ્રેષ્ઠ કહ્યું છે, દાદા શ્રી ભગવાન કહે. જ્ઞાન તો એનું નામ કહે છે, પ્રસંગ પર જે હાજર રહે. જોયું જાણ્યું ભૂલાય કદી નહીં, દાદા શ્રી ભગવાન કહે. તારી પકડે તું પકડાયો, પકડનાર તો તું ખુદ છે. પકડ છોડ તો સહેજે છૂટશે, દાદા શ્રી ભગવાન કહે. સર્વ ઉપાધિનું મૂળ હું છું, સમજણ જ્યાં એવી પ્રગટે. અંતરાયો સૌ સહેજે ખસશે, દાદા શ્રી ભગવાન કહે. અંતરાય છે નિજના પડઘા, જવાબદાર તમે ખુદ છો. દોષ ન દેતા ભોગવી લેજો, દાદા શ્રી ભગવાન કહે. હું કોણ છું એ જાણી લીધું તો કરવાનું કશું રહ્યું નહીં. જાણપણું બધું સ્વયં કરશે,
દાદા શ્રી ભગવાન કહે જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ ગાયું તમે. બહુ સરસ. આમાં શું જાણવા મળે એવું છે તમને? શું ગમ્યું આમાં? કે આત્મામાં તો સુખ અંદર જ છે પણ બહારની ચીજમાં નથી, પણ મને હજી બહારની ચીજમાં જ વધારે છે એવું કે બહારની ચીજમાંથી હેપીનેસ મળે, હજી એવું અંદર થોડુંક રહ્યા કરે છે. ઓકે, કેશવજી. હાજી, અનન્યાબેન ને બહારનું સુખ વધારે લાગે છે. હા, તો એ તો બહારના સુખમાં જ્યારે માર ખાઈશું ને ત્યારે બહારનું સુખ જતું રહેશે કાયમ માટે. કારણ કે બહારનું સુખ તો કેવું છે, એક વખત આવે અને પછી થોડી વાર પછી જતું રહે. કોઈ કહે કે અનન્યાબેન બહુ સારા બેન છે, બહુ સરસ કામ કરે છે, બહુ સુંદર છે, બહુ સ્ટડીમાં નંબર 1 છે, તો આ બહારથી પછી સુખ આવ્યું. પણ ભૂલે ચૂકે જો અનન્યાબેનને કોઈ કહી દે કે અનન્યાબેન તો ખાલી વાતો કરે છે, આ તો અક્કલ વગરની છે, એવું ખાલી કોઈ કહે ને પછી ખબર પડશે કે બહારનું સુખ કેવું છે. કારણ કે બહારનું સુખ તો બધું હોરી લીધેલું સુખ કહેવાય. હા, તો અંદરનું સુખ તો કેવું છે, કાયમનું સુખ છે. બહાર ગમે તેટલું કોઈ બોલી જાય, બહાર ગમે તેટલું કઈ તુફાનો ચાલે, પણ અંદરનું સુખ તો એનું એ જ રહે, પરમાનન્ટ. કોઈ દિવસે અંદર હાલી ના શકે, કોઈ દિવસે અંદર કોઈ એને પકડી ના શકે. તો એ દાદા શું કહેતા હતા કે અંદરનો સુખને પકડો, બહારનું સુખ તો ટેમ્પરરી છે, અંદરનું સુખ પરમનન્ટ છે. એક વખત જે અંદરના સુખને ટચ થઈ ગયું ને, એ મળી ગયું અંદરનું સુખ, તો પછી કોઈ દિવસે જશે જ નહીં, કોઈ મહેનત બી નહીં કરવી પડે. સહજ સહજ સુખ રહ્યા જ કરશે આખો દિવસ, 24 કલાક, 1 મિનિટ માટે પણ જશે નહીં. અંદરનું સુખ એવું છે. બહારનું સુખ ટેમ્પરરી છે, એ તો એક વખત આવ્યા પછી જતું બી રહે, ગમે ત્યારે જતું રહે. ખાલી આટલો જ એક નાનો સંજોગ ભેગો થાય ને, ઊંધો સંજોગ ભેગો થાય ને, એટલે બધું બહારનું સુખ જતું રહે. એટલે જે બધા વિચારશીલ લોકો હોય, જે જ્ઞાનીઓ હોય, દાદા ભગવાન જેવા હોય, જે આખું વિજ્ઞાન લઈને આવ્યા હોય, તીર્થંકર ભગવંતો હોય, એ લોકોએ કોઈ દિવસે બી બહારના સુખની કઈ યાચના બી નહીં કરેલી, બહારની સુખની તો વાતો બી ના કરેલી. બહારના સુખની તો આમ એમને ખબર જ હતી કે ભાઈ આ બહારનું સુખ તો ટેમ્પરરી છે. જે અંદરનું સુખ છે એ પરમનન્ટ છે, કોઈ દિવસે જાય નહીં. ખાલી એક વખતે એ અંદરના સુખને ટચ થઈ જવું જોઈએ, એવું છે. તમને કેમ લાગે છે? સાચું છે, તમે જે કયો છો એ 1-2 દિવસ, અડધો દિવસ ફોલો થાય, પછી નથી થતું. હા, તો એનું આપણે અભ્યાસ કરવું પડે ને, અને એના માટે આખી અંદર ગોઠવણ કરવી પડે. દાદા ભગવાન બહુ સરસ શબ્દ બોલતા હતા, ગોઠવણ. અંદર ખાને એવું ગોઠવણ કરીને રાખવાની કે ગમે ત્યાંથી પેલા એવા આડા સંજોગો મળે, કપરા સંજોગો આવે, કોઈ અપમાન કરે, તો અંદર ખાને પહેલાથી સેટિંગ કરીને રાખવાની કે અનન્યાબેન આપણે અંદર ખાને તૈયારી કરીને રાખો. જો પરમનન્ટ સુખ હોય ને, તો દિવસ દરમિયાન ગમે તે આપણે અમારું અપમાન કરે, ગમે તે આપણે કોઈ બોલી જાય, ગમે તે અમારી ઇન્સલ્ટ કરીને જાય, પણ આપણે તે વખતે જ્ઞાન હાજર રાખવાનું કે આ કોણે બોલી ગયા? અનન્યાબેને બોલ્યા, મને તો બોલ્યા જ નથી. આત્માને તો કોઈ દિવસે દુઃખ થતું નથી, આત્માને તો કોઈ દિવસે એવું વિચાર બી નથી આવતું. એટલે આપણે એવી રીતે અંદર ગોઠવણ કરવાની, તો ધીરે ધીરે શું થશે કે આજે એક સંજોગમાં તમારે ક્ષમતા રહી, એક સંજોગમાં તમારે જ્ઞાન હાજર રહ્યું, આમ કરતા 4 સંજોગ 5 સંજોગમાં તમને ક્ષમતા રહેશે, જ્ઞાન હાજર રહેશે. તો પછી ધીરે ધીરે વધતું જશે, પછી પરમનન્ટ થઈ જશે. ભલે હમણાં 1 વખત રહ્યું, 2 વખત રહ્યું, પણ તમને ખબર તો પડી ને કે ભાઈ આ 2 વખત રહ્યું તો ત્યારે કેવું સારું લાગતું હતું. એ આપણે કમ્પેરિઝન કરવાનું, કમ્પેર કરીએ ને કે ભાઈ એ મને જ્યારે જ્ઞાન હાજર રહેલું, કોઈએ મારી ઇન્સલ્ટ કરી, તેમ છતાં મને અસર નહીં કરી, કારણ કે મને તે વખતે છૂટાપણું રહ્યું કે આ કોણે બોલે છે, કે અનન્યા બોલે, હું તો શુદ્ધ આત્મા છું, શુદ્ધ આત્માને તો કોઈ ગાળ વાગતી નથી, શુદ્ધ આત્માનું કોઈ અપમાન કરતું નથી. એવું આપણે ગોઠવણ કરી લીધી ને અંદર ખાને, તો પછી આપણે એકદમ સેટ થઈ જાય.
એક વખત સેટ થઈ ગયો પછી કોઈ આપણે હલાવી ના શકે. બરોબર છે? બરોબર. કેશવાનજી, હાજી. એવું એવું છે ને થિયરી કે સુખ આવે પછી દુઃખ આવે, દુઃખ આવે પછી સુખ આવે, એ થોડું સમજણ પાડો. અત્યારના જે સુખ લાગતું હોય આપણને એ પછી હા પાછળથી એનું કઈક અસર રહેવાની ને દુઃખ માટેનું. હા, એ તો કેવું છે ને, સુખ અને દુઃખ તો એક દ્વંદ્વ ગુણ છે. સુખ પછી દુઃખ આવે, દુઃખ પછી સુખ આવે, એ તો વ્યવહારમાં બધું ચાલ્યા કરે. પણ એ ટેમ્પરરી છે. બહારનું જે સુખ છે ને, અને સુખ પછી દુઃખ આવે, દુઃખ પછી સુખ આવે, એ તો બહારની ભાષામાં બરોબર છે. બહારની ભાષામાં તો એ લોકો આમ કરીને પોતાને સમતુલનમાં રાખે, પોતાને પછી એડજસ્ટ કરી નાખે. પણ જ્ઞાનીઓની ભાષામાં, આપણા વિજ્ઞાનમાં, દાદા ભગવાનની ભાષામાં સુખ દુઃખ શું છે કે ભાઈ એ તો એક દ્વંદ્વ ગુણ છે. સુખ પછી દુઃખ આવે, દુઃખ પછી સુખ આવે. પણ આત્માના કેસમાં આપણા જે જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો એ જે સુખની વાત છે તે બહાર વ્યવહારિક સુખની વાત છે, અને દુઃખની વાત છે એ બી વ્યવહારિક દુઃખની વાત છે. પણ આપણા જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ તો આપણે આત્માનું જે પોતાનું પોતાનું સ્વતંત્ર સુખ છે એ સુખ પરમાનન્ટ છે, એ ઇન્ટરનલ છે, એ અંદરનું સુખ કહેવાય. બહારનું સુખ તો હોતું જ નથી. બહાર તો બધી એક વખત એડજસ્ટમેન્ટ થાય, બીજી વખત એડજસ્ટમેન્ટ બદલાઈ જાય તો દુઃખ જેવું લાગે. પણ અંદર ખાને કેવું હોવું જોઈએ? અંદર ખાને પરમાનન્ટ સુખની યાચના હોય છે, એની જ ભાવના હોવી જોઈએ, એમાં જ રહ્યા કરવું જોઈએ. અને એ સુખ કેવું છે કે પરમાનન્ટ છે, એટલે કોઈ દિવસે ગમે તે કોઈ બોલી જાય, ગમે તે અમારા પાસેથી એ સુખ કોઈ ખેંચી ના શકે. નિરંતર સ્વતંત્ર રીતે એમનાથી સુખ મળ્યા જ કરે. એટલે આપણે શું ભાવના રાખવાની કે મને નિરંતર દાદા ભગવાન જેવું દાદા રહેતા હતા. દાદા ભગવાનને કેવી રીતે 24 કલાક પોતાના સ્વમાં રહેતા હતા, 24 કલાક એની પાસે મુક્ત હાસ્ય રહેતું હતું, 24 કલાક એના આનંદમાં રહેતા હતા, 24 કલાક એ આત્મામાં રહેતા હતા. એમને દુઃખ જેવી કોઈ વસ્તુ અડતી જ નહોતી. એવી આપણે દાદાને પ્રાર્થના કરીશું તો ધીરે 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 આપણામાં બી એવી રીતે પરમાનન્ટ સુખની શરૂઆત થઈ જશે. બરોબર? બરાબર. એ બીજું જાણવું છે પદમાં અનન્યબેન? કાઢું? ના ના, બાકી સમજાઈ ગયું. સમજાય ગયું? બહુ સરસ. વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કશ્યપભાઈ? બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જી જય શેર કરવાનું ઓપ્શન આપજો. હા, કરો કરો. આપવાની 4 છે. જ્ઞાન અંતરાય, દર્શન અંતરાય શેનાથી? જે છે દાદાજી કહે છે દરેક શબ્દ બોલવા જોખમ ભર્યો છે, તે બોલતા ના આવડે તો મૌન રહેવું સારું. એમાં ધર્મમાં બહુ જ જોખમ છે, વ્યવહાર ના જોખમ તો ઉડી જાય. આ પદ ગાતા કેમ નથી આવડતા? આપણને તો આવડે નહીં એમ કરીને અંતરાય ઉભા કરેલા. આપણને તો આવડે જ એવું બોલે એટલો અંતરાય તૂટે. શીખવા જેવું પડતું જ નથી, બધું શીખીને આવેલો છે. પ્રશ્ન કરતા મને પદ ગાતા આવડે છે, બોલે એટલે આવડે. ના આવડે છે એવું નહીં, ના કેમ આવડે એવું મનમાં दृढ़ રહેવું જોઈએ. पर इसमें बताएं कि वो कि जो शब्द बोलना जोखम भरा है वो बता रहे हैं, और मौन रहना सारू है। वो थोड़ा महात्मा के दृष्टि से भी थोड़ा बताइए कि कैसा है। हाँ, दादाजी क्या बोलना चाहते हैं कि आजकल व्यवहार में क्या है कि भाई कोई भी एक शब्द बोलो, हाँ, तो बहुत बड़ा जोखम है उसमें। कुछ भी बोलो ना तो बहुत बड़ा जोखम क्यों है? क्योंकि अगर आप उसको कुछ सही सलाह देते होंगे, कुछ अच्छा भी बोलते होंगे, तो वो उस शब्द का कोई दूसरा मतलब निकालेगा तो वो आपके लिए कैसा हो जाएगा? कितना जोखम भरा हो जाएगा। आपके साथ वो नफरत करेगा, आपके साथ वो वेर बांध डालेगा। इसलिए दादाजी क्या बोलते हैं कि जब तक कोई प्रश्न ना पूछे, जब तक कोई आपके साथ कोई क्वेश्चन नहीं करता है,
तो तब तक कुछ मौन रहना चाहिए। कुछ बोलो तो सीधा उसके ऊपर वो जोखम बढ़ जाता है। कुछ कुछ हमारा भावना भी नहीं हो किसी को दुख देने का, पर वो उस शब्द का कोई दूसरा मतलब निकालेगा कि नहीं नहीं आपका कहने का ये मतलब था। अरे बाबा मेरा ये मतलब नहीं था। तो ऐसा जोखम बढ़ेला शब्द बोलने से। दादा क्या बोलते हैं कि कुछ जितना हो सके अपने को साइलेंट रहने का, मौन रहने का। और वो जो बोल रहे हैं कि मतलब जो अंतराय अभी जो है, महात्मा को अंतराय नए पड़ते नहीं है, लेकिन पहले के अंतराय पड़ेगा उसका फल आता है ना। हाँ हाँ तो जो बरोबर। आते हैं जो उसको मतलब हमको, मेरे को ये समझ में आया कि हमको जो है निश्चय अपना मन दृढ़, अपना मन दृढ़ रहना चाहिए। तो मतलब हाँ मन दृढ़ रखना है कि नहीं मैं तो कर सकता हूँ ये चीज, तो वो फल का शक्ति मिलेगी जो है, दादाजी से शक्ति मांग के वो करने का दृढ़ रखना, ऐसा ऐसा मुझे समझ में आता है। सही है। हाँ हाँ सही है। दादाजी क्या बोलते हैं कि हमको ऐसा दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि मेरे को किसी भी हालत में किसी के भी साथ कभी भी ऐसी जोखम वाली वाणी नहीं बोलनी है। भले कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है, तो भी अपने का निश्चय क्या होना चाहिए कि भाई हमारे को हमारे मन वचन से किसी को दुख ना हो, हमारी वाणी ऐसी निकले कि सबको सुख हो, हमारे वर्तन से हमारे बात करने से किसी को अंतराय नहीं पड़े, किसी को दुख नहीं पड़े। वो ऐसा दृढ़ पक्का निश्चय रखना चाहिए। और जो दर्शनांतराय और ज्ञानांतराय है वो मुझे थोड़ा हम्म। क्लियर नहीं हुआ कि महात्माओं का वो निकल गया है कि निकलना शुरू हुआ है कि कैसा होता है। देखो ज्ञान मिलने के बाद तो दुनिया के सब अंतराय खलास हो जाते हैं। हम्म। कोई भी अंतराय बाकी नहीं रहता है। जो कुछ होता है तो डिस्चार्ज में जो भी होता है, तो डिस्चार्ज में जो भी आता है तो उसको हमको निकाल करना होता है। बाकी अभी अभी ज्ञान मिलने के बाद दादा क्या बोलते हैं कि एकदम सील हो जाता है। अभी खाली डिस्चार्ज में जो रहता है उसको अपने को देखने को होता है। और वो जो भी अंतराय होता है तो वो भी ज्ञानी पुरुष की कृपा से, ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहने से, ज्ञानी पुरुष के विज्ञान को समझने से वो सब धीरे वो भी अंतराय चले जाते हैं। अभी हम महात्माओं से सबसे किसी से भी बात करके पूछे तो बोलेंगे अभी अंतराय जी से तो कोई चीज लगता ही नहीं, सब कुछ सहज हो गया है। मेरे को सत्संग का इतना अच्छा स्कोप मिलता है, हर एक बात में अच्छा स्कोप मिलता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हर एक बात में दादाजी को अपने सर पे रखते हैं, हर एक बात में दादा से शक्ति मांगते हैं, हर एक बात में दादा को हम हाजिर करते हैं कि दादा भगवान आप हाजिर हो और मुझे को मेरे इस जो भी अंतराय आए हैं इसमें से मेरे को मुक्त कराओ। बस इतना बोलने से सब अंतराय चले जाते हैं। वो जो है उसका जो है दर्शन, दर्शन मतलब समझ जो है अपना, ठीक है, उस पे अंतराय नया नहीं पड़ते हैं, लेकिन हमारे जो पहले के जो भूल की हुई है उस पे हमारी समझ में जो है कमी तो रहती है ना, जो है कि हमको कई बार ऐसा परिस्थिति आती है कि क्या ये करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसा होता है ना जो है। हाँ तो तो वो बल दर्शन दर्शन के ऊपर आवरण तो होते हैं ना, जो है आवरण हमारी समझ के ऊपर, हमारी दृष्टि के ऊपर आवरण तो होते हैं ना। आवरण होते हैं, पर अभी वो जो है ना जब तक ज्ञान नहीं मिलता है तब तक तो उसको पता भी नहीं चलता है कि मेरा मैं कौन हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये किसके ऊपर आवरण आते हैं, ये किसके ऊपर अंतराय आते हैं, उसको विभाजन ही नहीं होता है। पर ज्ञान मिलने के बाद अगर कुछ भी होता है उसको दर्शन आवरण होता है तो फिर वो भी उसको क्या है, देखता है भाई ऐसा ऐसा उसको हो रहा है। पर उसके सामने फिर वो अपना पुरुषार्थ कैसे बढ़ाता है, दादा भगवान से शक्ति लेके कि दादा आप बता अंतराय मेरा आ रहा है वो मेरे को इसमें से मुक्त कराओ मेरे। और ऐसा बोलने से, दादा को सर पे बिठाने से वो सब अंतराय टूट जाते हैं। और धीरे हाँ, धीरे 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 सब अंतराय खाली होते जाते हैं। आप सभी हमारा महात्माओं निश्चय को बल और दादाजी का वचन बल वो काम करता है। वचन भर, हाँ वो दोनों काम करता है। समझ लो। फिर आगे है જેના પરોક્ષના અંતરાય તૂટ્યા હોય એમને પ્રત્યક્ષના અંતરાય હોય જ, એટલે એમને પરોક્ષ જ મળે, અને પ્રત્યક્ષ અંતરાયો તો બહુ મોટો મોટો પડેલા હોય તે તૂટે તો અનંત અવતારનું અ, સાટું વળી જાય। हाँ ભાષણ કરતા જ્ઞાન અંતરાય ને દર્શન અંતરાય કેવી રીતે તૂટે એ અંતરાય જ્ઞાની પુરુષ તોડી આપે છે, ત્યાં બધા हाँ જ્ઞાની પુરુષ અજ્ઞાન તોડી આપે અને અંતરાય પણ કાઢી આપે, પણ અમુક અંતરાય તો જ્ઞાની પુરુષ પણ ના તોડી શકે। हाँ પ્રશ્ન કરતા એ કયા અંતરાય।
દાદાશ્રી જે જ્યાં વિનય ધર્મ ખંડિત થતો હોય તે વિનય ધર્મ તો મોક્ષ માર્ગમાં મુખ્ય વસ્તુ છે. જ્ઞાની પુરુષ માટે એક અવલો વિચાર પણ ના આવવો જોઈએ. अब यहाँ पर जो बता रहे हैं कि जो मतलब जो मतलब बहुत सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो विनय जो जहाँ पर नहीं खंडित हुआ है, विनय धर्म नहीं है, वो वैसा अंतराय जो पड़ता है वो हाँ। वो तोड़ना बहुत ही मुश्किल है. उसके बारे में बताइए कि आज महात्मा के लिए कैसा जो है वो क्या सतर्क रहना चाहिए विनय धर्म के बारे में. हाँ, अभी वो दादाजी क्या बोलना चाहते हैं कि सबसे बड़े में बड़ा अंतराय कौन सा है कि जो आदमी को विनय नहीं हो. विनय मतलब कैसा, ज्ञानी पुरुष के आगे ज्ञानी पुरुष आपको बोले कि ये 5 आज्ञा में रहना है, ज्ञानी पुरुष बोले कि अपने को कषाय नहीं करना चाहिए, ज्ञानी पुरुष बोले आखिर जगत को निर्दोष देखना चाहिए, ज्ञानी पुरुष बोले कि आप ज्ञानी पुरुष चाहे तो कर सकता है, ये ऐसा पूरा लक्ष्य में होना चाहिए. पर उसके बाद अगर वो उनका नहीं कहना मानता है तो आपने क्या किया, विनय धर्म पूरा खंडित हो जाता है. क्या मतलब ज्ञानी पूरा पुरुष के अनुसार नहीं चले तो वो अभिनय हो गया जो ऐसा ऐसा बहुत बता बड़ा रहे हैं. अभिनय, बहुत बड़ा अभिनय. क्योंकि दादा भगवान क्या बोलते थे कि वो दादा भगवान का जब उन्होंने बोला कि मेरा एक वाक्य को भी पकड़ लेगा तो सीधा मोक्ष चला जाएगा, पर उसके सामने तो दादा ने कितनी सारी चीजें बोली है, तो वो अगर आप उसको फॉलो नहीं करो तो आपने पूरा विनय धर्म खंडित हो गया ना. विनय का क्या मतलब क्या होता है कि ज्ञानी पुरुष बोले कि भाई ये रास्ते से जाने का है और पीछे मुड़ के नहीं देखने का है, तो फिर तुम बार बार पीछे मुड़ो. ज्ञानी पुरुष बोले कि आपको लिफ्ट में बिठाया, हाथ पग बाहर नहीं निकालने का, तो बार बार हाथ पग बाहर निकालो. तो आपको विनय धर्म में कहाँ रहे. विनय धर्म का मतलब क्या होता है कि ज्ञानी पुरुष जो बोले उसके मुताबिक चलना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए कि पीछे कौन सी दुनिया है. और यहाँ पर जो प्रत्यक्ष और परोक्ष का बताया है कि जिन्हें प्रत्यक्ष अंतराय टूटा हुआ है, तो वो इसमें महात्मा के लिए रेफरेंस में क्या अब हाँ, कैसे मतलब जिनका जिनका प्रत्यक्ष का अंतराय टूट गया. अभी प्रत्यक्ष का अंतराय कैसा होता है कि ज्ञानी पुरुष इधर बैठे हो, बरोबर, और उधर उधर आपको बार बार कोई बाहर से बुला के लेके जावे, घर के फाइल आके लेके जावे, तो वो प्रत्यक्ष के हाजिरी में होते हुए कितना बड़ा अंतराय है. भगवान हाजिर बैठे हैं, आप उनके सत्संग में बैठे तो वहां से आपको पकड़ के बाहर कोई लेके जाए, कोई फाइल आए, बोले चलो अभी कभी हॉस्पिटल जाना है, आपको उसी समय ही सत्संग भी छोड़ के जाना पड़े. तो तो मतलब जैसे हम सत्संग नहीं जा पाएंगे, सत्संग में नहीं कर पाएंगे, ऐसा ऐसा सब प्रत्यक्ष का अंतराय होगा ना. हाँ, क्योंकि क्या है कि हमने गया व्यय में ऐसे ऐसे अंतराय करे ले है कि तो वो ऐसी ऐसी बातें की हुई है जिसकी वजह से प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की हाजिरी में बैठे हुए भी हमको वो मौका नहीं मिलता है उनको उनके सामने बैठने का. तो वो कितना बड़ा अंतराय होता है. फिर लास्ट है प्रोफेशन का अंतराय પોતાની મેલે તૂટે કે પુરુષાર્થી તૂટે. દાદાશ્રી એક ભાવથી તૂટે. જ્યારે અંતરાય તૂટવાનો કાલ આવે ત્યારે ભાવ થાય. આ हाँ, જ્ઞાન મળી જઈને તેને તો બધા અંતરાય તૂટી જાય, કારણ કે અંતરાય અહંકારને લીધે પડે છે કે હું કંઈક છું. અંતરાય કર્મ તૂટે તો ઘડીએ વાર લાગતી નથી. આત્માને અને મોક્ષ કેટલું દૂર છે, કશુંય નહીં. વચ્ચે અંતરાય પડેલો છે એટલું જ દૂર છે. આત્મા પ્રાપ્ત કર્યા પછી અંતરાય એ સંયોગ સ્વરૂપી છે ને સંયોગ વિયોગી સ્વભાવના છે ને આપણે શુદ્ધાત્મા असंयोग अवयोगी છીએ. तो हाँ, इधर जो बता रहे हैं कि जो है कि अंतराय ज्ञान के बाद जो है वो अंतराय टूट जाते हैं, जैसे आपने भी बताया. वो मतलब कि वो मैं शुद्धात्मा हूँ वो में आ जाता है. तो वो जो है मतलब कि वो बता रहे आत्मा, ये थोड़ा इसके बाद बताए. आत्मा અને મોક્ષ નું કેટલું દૂર છે, કશુંય નહીં. વચ્ચે અંતરાય પડ્યો છે તે એટલું જ हाँ, દૂર છે. ये थोड़ा सा दूर दूर. अभी दादा क्या कहना चाहते हैं कि आपको एक तरफ आत्मा प्राप्त हो गया. हाँ, तो आत्मा प्राप्त हो जाने के बाद तभी मोक्ष होता है, बरोबर है. तो ये दोनों के बीच में अंतराय और मोक्ष के बीच में कितनी दूरी है. मतलब बीच का जो खाली अंतराय जो पड़ा हो कि भाई कोई किसी को आपने ऐसा रोक ठोक किया हो
किसी को अंतराय किया हो तो हमारा मोक्ष भी अटक जाता है। तो जो बीच में हम अंतराय कर्म बांधते हैं ना, इतनी दूरी है आत्मा और मोक्ष के बीच में। मतलब जो कुछ आवरण पड़े हुए हैं बस उसके कारण ही जो है मतलब मोक्ष जो है वो हट जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा बोलना हाँ, चाह सीधा मोक्ष हो जाएगा, इतनी इतनी इतना कनेक्टेड है। और ये जो है मतलब ये आत्मा प्राप्त करे પછી अंतराय संयोग असहयोग स्वरूपी मतलब जो अंतराय फल कर्म फल में फल स्वरूप आते हैं वो उनका वियोग कभी ना कभी होगा, ऐसा ऐसा जो है मतलब समझ। अंतराय क्या है? एक संयोग है। अभी वो संयोग क्या होता है? वो संयोग कोई परमानेंट नहीं रहता है। संयोग जो भी आया, भले चाहे अंतराय कर्म का आया या बिना अंतराय कर्म का आया, पर उसका स्वभाव क्या है? वियोग ही है। इसलिए हमारा हम क्या और है एक कि और हम जी हाँ, और हाँ आप बताइए बताइए। हाँ, बस यानी हाँ हम हमारे 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 अंदर जब शुद्धात्मा प्राप्त हो जाता है तो हमारी हमारी परिस्थिति कैसी होती है कि संयोग आया, उसका वियोग हो गया। और संयोग क्या होता है? वो वियोगी स्वभाव का होता है। इसलिए इसके बीच में इतनी छोटी दूरी है कि खाली समझो ना, यहाँ से यहाँ पार करने का है। भाई एक 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 डगला इस तरफ से जाने का है तो सीधा आत्मा में आ गया, एक डगला इस तरफ आया तो सीधा मोक्ष में चला गया। कुछ कुछ जो है जब ऐसे सत्संग में होता है, आपसे बात करते हैं, आप पुत्र से बात करते हैं, सत्संग में आते हैं तो वो जो पहले कुछ समझ नहीं आया होता है थोड़ा थोड़ा फिर और क्लियर हो जाता है अपने आप ही फिर आपके ऐसे संजो ये जो है मतलब वो अंतराय जो ये भी इस तरह भी अंतराय टूटते हैं, ऐसा मेरा ओके, हाँ अनुभव आया। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट है, परफेक्ट। ठीक क्योंकि है, ये धन्यवाद। दादा की जो वाणी है ना, दादाजी का एक एक वाक्य है ना, खाली आप पढ़ो ना तो वो पढ़ने से भी पूरा अंतराय टूट जाता है। इतनी इतनी बड़ी शक्ति है एक एक वाक्य में, क्योंकि ज्ञानी पुरुष के हृदय को टच किया हुआ एक एक वाक्य निकलता है। तो ये खाली पढ़ने से, खाली सुनने से सब अंतराय टूट जाते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है ज्ञानी पुरुष की ये सत्संग की वाणी। सत्संग में आने से भी अंतराय टूटते हैं, मैं ये मेरा हाँ, कहना बहुत अंतराय टूटते हैं सत्संग में। क्योंकि सत्संग में तो कभी बैठने का चांस ही नहीं मिला है। हम सब कुसंग में ही रहे, कितने भाव सब कुसंग में ही निकाले। अभी जब सत्संग में बैठने को मिला, सत्संग की बातें सुनने को मिली, तो समझना तब से ही अंतराय कर्म टूटना शुरू हो गए। अंतराय जितने भी है वो वहां से भागना शुरू हो गए। नहीं तो सत्संग में बैठने का भी मौका नहीं मिलता है। बोलो, सही। हमारे इतने धन्यवाद। अंतराय किए हुए होते हैं। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच। दीपक भाई, हाँ बोलो दीपक भाई। કેશવાનંદજી સચિદાન કેશવાનંદજી જય સચિદાન जय सच्चिदानंद। આપણે ચીકણી હા એક મિનિટ ચીકણી ચીકણી ફાઇલ સાથે કઈ બોલવું સંભળાય છે ને ચીકણી ફાઇલ સાથે થોડો કઈ બ્રેક બોલવું થાય છે હોય આવાજ। હા, એટલે આ તો હા ચીકણી ફાઇલ સાથે કઈ બોલવું હોય તો પહેલા એના શુદ્ધાત્મા જોઈ લેવા પછી બરોબર। મનમાં વિધિ બોલવી કે હે દાદા ભગવાન સમાધાન થાય એવું બોલવાની શક્તિ આપો જદુભાઈ તમે સામાન્ય સમાધાન કરી પદ્માવતી દેવી સર્વ दीपक વિઘ્નો भाई દૂર નથી આવતો સાઉન્ડ બરાબર, આ તમે ત્રણ વાક્ય માઇક બોલીને માઇક બરાબર માઉથ પાસે બરાબર રાખો, થોડો દૂર। દીપક ભાઈ, હા સંભળાય છે હા હવે બહુ છે, હા, બોલો સંભળાય છે હવે બરાબર છે। એક મિનિટ આ ત્રણ વાક્યો બોલીને સામા જોડે વાત કરવાની વાત કરતા પહેલા આગળ થોડી થઈ ગઈ હોય તો એ વાંધો નહીં મનમાં ગોઠવી ના બોલવું તમને ફાવશે નામાં એટલે આમાં વિઘ્નો દૂર થાય અને પદ્માવતી દેવીને એટલે આ પ્રયોગથી સફળતા બી મળે છે કે આપણને પણ એમાં શું પદ્માવતી દેવીને આપણે કેમ સંબોધન કરીએ છીએ એક મિનિટ ફરીથી બોલો, થોડો અવાજ થોડું બરોબર સમજાતું નથી।
દીપકભાઈ હા હા સંભળાય છે હવે? સંભળાય છે? હા સંભળાય છે, પણ થોડું વચ્ચે વચ્ચે બ્રેક થઈ જાય છે. થોડું ક્લિયર આપ દૂરથી વાત કરો કે થોડું દૂર રાખીને તો કદાચ ક્લિયર સમજાય. અને થોડું જોરથી બોલો. હા હા એટલે એમાં શું પદ્માવતી દેવીનો આપણે જે આપણે એ સંબોધન કરીએ ને એટલે એ વિઘ્નો દૂર થાય છે. વિઘ્નો દૂર થાય છે તો એનું શું કારણ હોય છે આપણે એમાં થોડુંક સમજવું હતું કે પદ્માવતી દેવીને આપણે કેમ આપણે એક મનનું સમાધાન થાય નથી સંભળાતું? હા એટલે આપણે પદ્માવતી પદ્માવતી માતાજીનું મહત્વ એમને સમજવું છે, એમનાથી શું ફાયદો થાય. બરોબર. હવે પદ્માવતી દેવીનું બહુ મોટું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. આપણે પદ્માવતી દેવી આપણે શું છે, દરેક પ્રકારના વિઘ્નો હોય એટલે આપણે દરેક પ્રકારની કોઈ પણ આપણે મોક્ષે જવા માટે કોઈ બી તકલીફો પડતી હોય તો એ પદ્માવતી દેવી શું કરે, એ બધા વિઘ્ન તોડી આપે. એનું મેઇન કામ શું છે કે આ જે મોક્ષગામી જીવો છે ને એને કેવી રીતે સહાય બનીએ, એને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈએ, એના માટે દરેક પ્રકારના વિઘ્નો તોડી આપે. એટલે પદ્માવતી દેવીનું જબરજસ્ત ઇમ્પોર્ટન્સ છે કે મોક્ષે જવું હોય તો અમારા સર્વ પ્રકારના વિઘ્નો એ તોડી આપે. એટલે આપણે એટલા માટે પદ્માદેવીને ખૂબ આરાધન કરતા હોઈએ છીએ. ખ્યાલ આવ્યો? હા બરાબર. એ બધા વિઘ્નહરણ દેવી કહેવાય. બધા દરેક પ્રકારના મોક્ષે જતા વિઘ્નો અનેક પ્રકારના હોય, એ બધા વિઘ્નો તોડી આપે અમને. બરાબર. આપણે આ બીજ સંભળાય છે કે હા હવે બોલો હવે બોલો, બરાબર બરાબર છે. કે આ ફાઇલ નંબર 1 એ સંયોગ એ મોટા એ સંયોગ કહેવાય. એટલે સંયોગ આ જે ફાઇલ નંબર 1 એ જ્ઞેય કહેવાય અને મોટો સંયોગ તો ફાઇલ નંબર 1 નો છે, એમ સત્સંગમાં સાંભળ્યું છે. મોટો સંયોગ ફાઇલ નંબર 1 નો છે. એટલે આપણે એમ કે સંયોગ એટલે કે આ કઈ આવી બહારથી આવી પડે સંયોગ, પણ એ પોતે સંયોગ રૂપે છે. શું સંયોગ શું બહારથી આવીને બહારથી જે કઈ આવે આપણે કઈ ઘટના બને એને સંયોગ કહીએ, પણ ફાઇલ નંબર 1 પોતે જ એક સંયોગ છે. હા એના વિશે થોડો પ્રકાશ પાડો. હા, બાહ્ય સંયોગ અને અંદરના સંયોગો બધા જુદા જુદા હોય ને. આપણે અંદરનું બી સંયોગ ભેગું થાય, બહારના સંયોગો ભેગા થાય. ફાઇલ નંબર 1 બી બહુ મોટો સંયોગ છે. પણ એ બધા સંયોગોમાં કેવું રહેવું જોઈએ, એ બધા સંયોગોમાં હમણાં આવ્યું ને કે એ બધા સંયોગો યોગી સ્વભાવના છે. ગમે તે સંયોગ હોય, ફાઇલ નંબર 1 નો બી ટાઈમ પૂરો થાય તો એને જવું પડે કે ના જવું પડે. એટલે સંયોગો માત્ર યોગી સ્વભાવના છે. અંદરના હોય કે બહારના હોય, એનું ગમે ત્યારે બી એનો અંત છે, એમનું એન્ડ છે. એ કોઈ પરમનન્ટ નથી. એટલે સંયોગી વિયોગી સ્વભાવના એટલા માટે કહ્યું કે ગમે તેવા સંયોગ આવે ને એમાં આપણે તન્મય થઈ જઈએ કે અરે આ આવું કેવું સંયોગ આવ્યું, કઈ દુઃખનો સંયોગ આવ્યો તો પછી એમાં પછી રચ્યા પચ્યા રહીએ, પછી એ અસર કરી જાય. તો દાદા શું કહેવા માંગે છે કે સંયોગો માત્ર વિયોગી સ્વભાવના છે. ગમે તે સંયોગ આવે, સારો સંયોગ આવ્યો તો બી એ વિયોગી છે. અને સગો કોઈ આવે બહુ સરસ, જેની સાથે તમારે બહુ સારા સંબંધ હોય અને તમારે એમની સાથે બહુ પ્રેમ હોય, તો એ સંયોગ ભેગો થાય અને પછી તમે એને કહો 20 દિવસ 25 દિવસ ઘરમાં રહે અને પછી એવો થોડો એ સંયોગ પૂરો થાય ને કે હું હવે તો જઉં છું, તો પછી તો એને પછી ઊંઘ બગડી જાય. પણ સારો સંયોગ બી વિયોગ થવાનો ને. પછી તો કે ના ના તમે નહીં જશો, આમ કરશો, તેમ છતાં બી આ હાથ પકડી રાખે તો બી હાથ છોડીને કે ના મારે જવું જ છે. એટલે દાદાએ શું કહ્યું કે સારા સંયોગો હોય કે કપરા સંયોગ હોય, ગમે તેવા સંયોગો આવે છે, એ બધાનું વિયોગી સ્વભાવ છે. એમાં આપણે શુદ્ધ આત્મા તરીકે જોયા કરવાનું. આપણે શુદ્ધ આત્મામાં રહેવાનું, પોતાના સ્વપરિણીતિમાં રહેવાનું. બાકી સંયોગો માત્ર વિયોગી સ્વભાવના. ખ્યાલ આવ્યો? હા બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી. Yes. 1 minute. Okay.
जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी जो हमने सारे दिन का पुरुषार्थ का आयोजन किया है, उसमें हमने अपने आप को आईने के पास बैठकर नामधारी से, पड़ोस वाले से हम वार्तालाप करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो उसका आपने जरूर से दादा से सुना भी होगा और उसका उपयोग भी कभी किया होगा। तो आप अपना उदाहरण बता के इसका कैसे उपयोग करें वो आप बताइए। यही सच्चिदानंद। बरोबर। हिंदी में। हाँ, अच्छा ऐसा क्या है कि भाई हम फाइल नंबर 1 से जुदा हो गए। अभी ये जो भी संयोग आते हैं उसमें हर एक जगह पे हमको ये ज्ञान तो हाजिर रहता है कि भी ये संयोग आया, ये फाइल नंबर 1 में ये प्रॉब्लम हुआ, फाइल नंबर 2 के साथ ये प्रॉब्लम हुआ। तो हर संजोग में हमको जब जागृति रहती है तो उससे छुटापना और बढ़ता जाता है। हमारे फाइलें तो सब आती रहेगी, फाइलें तो है जितनी भी है, और उनका संभाव से निकाल करना, हाँ, उस संयोग में से बाहर निकलना, ये दादा की बहुत बड़ी साइंस है। वो साइंस में अगर हमने प्रगति की और तो फिर हमारा इतना ही हमारा अंदर का सुख बढ़ता जाएगा। अभी फाइलों के अंदर तो क्या होता है कि अगर हम उसमें इन्वॉल्व हो गए तो उसमें इन्वॉल्व होने से हम डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व होने के बाद क्या हो जाता है कि हमारा सब सुख चला जाता है, पूरा अंदर का सुख चला जाता है। तो इस फाइलों में जब भी ऐसी फाइल आ जाए तो दादा भगवान से शक्ति मांगने का, दादा भगवान को बोलने का, ये चिकनी फाइल है, इन चिकनी फाइलों का मेरे को संभाव से निकाल करने की शक्ति दो। और उस फाइलों के अंदर हम किस तरह से हर पल हर घड़ी जुदा रह सके, वो हमको दादा से शक्ति मांगनी है। और हमको ये समझ को एवरीडे डेवलप करना है। फाइलें तो आएगी, फाइलें तो हम अपने साथ लेके आए हैं। लास्ट बर्थ में हमने जो भी चार्ज किया है वो डिस्चार्ज होते समय हमको वो ज्ञान तो हाजिर रहना ही रखना है। पर उसके अंदर जागृति क्या रखनी है कि ये जो जितनी भी फाइलें आती है वो उनका हमको संभाव से निकाल करना है। और वो जो भी फाइलें आती है और जो भी संयोग आते हैं उनका तो वियोग होना ही है और वियोग हो ही जाता है। तो ऐसे ऐसे करने से हमको क्या होता है कि जिस जिस समय हमने उस संयोग में हम इन्वॉल्व हो गए, डिसॉल्व हो गए, तो उस समय हमको क्या जागृति रखने का, वो फाइल नंबर 1 को बोलने का कि प्रतिक्रमण करो, तुम इस जगह पे तुम मार खा गए, इस जगह पे आप भूल गए, इस जगह पे आपने अपना आपका उपयोग चला गया, इस जगह पे आपकी आज्ञा भूल गए। तो ऐसी दादा से शक्ति मांगने का, और एक तरफ दूसरी तरफ जब जब यो मिस हो जाता है उधर उस समय उसका प्रतिक्रमण करते जाने का। तो ये प्रतिक्रमण से और फाइल को साफ करते 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 एकदम अंदर पूरा शुद्ध हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और उसके बाद आपको हर एक संजोग में ऐसा सहज की तरह रहेगा, सहज की तरह फाइल का संभावना निकाल हो जाएगा, सहज की तरह हर एक संयोग आपका वियोग हो जाएगा। और आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये विज्ञान में एक बहुत बड़ी जीत क्या है कि इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसको खाली एक समझ 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 करना है कि दादा क्या कहना चाहते हैं, दादा हर एक बात में क्या इशारा करते हैं, दादा भगवान खुद कैसे रहते थे, दादा भगवान खुद कैसे इन संजोगों में से अपने आप को हर घड़ी हर पल अलग रखते थे। तो वो विजन हम दादा के अंदर जो देखा और दादा के अंदर जो आराधना की, ऐसा करने से वो हमारे अंदर प्रकट होती जाएगी। और जैसे जैसे हमारे अंदर प्रकट होगी उसी तरह से ही हम धीरे 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 ये पूरा मन वचन का दादा भगवान की तरह हो जाएगा, अंतस्करण पूरा दादा भगवान की तरह हो जाएगा। और जो जैसे दादा को अंदर का सुख अनुभव होता है वैसा ही सुख हमको अनुभव होता जाएगा। है हम उसी जगह पे, दादा क्या बोलते हैं कि जो हम केवल ज्ञान में बैठे हैं वही सेम ज्ञान मैंने हम आपको दिया है, कोई अलग नहीं दिया है। तो अभी क्या करने का है, बस वो दादा के कहने के मुताबिक अपने को फॉलो करना है, दैट्स ऑल। सही है। करेक्ट करेक्ट, वेरी तो गुड। ये क्या वो आईने के सामने जाके ये प्रैक्टिस कर सकते हैं उसने बहुत एक। अच्छा। हाँ हाँ, वो तो दादा भगवान ने खास बोला कि भाई ठपका सामायिक समझाया, ठपका देने का, आईने के सामने बोलने का।
कभी डिप्रेशन में आ जाए तो आईने के सामने बैठ के बोलने का हम आपके साथ बैठे हैं, आप क्यों घबराते हो। ये तो सब चीजें होने वाली है। दादा भगवान बोलते थे कि कुछ भी हो जावे, कितना भी डिप्रेशन आ जावे, कुछ भी गलत हो जाए, तो दादा बोलते इसमें कौन सी नई बात है। ये अभी थोड़ी हुआ है, कितने युगों से ऐसा होता हुआ है। कोई कोई बोले कि मेरा भाई मेरे से ऐसा बिहेव करता है, मेरे को सगा भाई हो के इस तरह से मेरी इंसल्ट करता है, सगा भाई हो के, तो बोलते इसमें कौन सी नई बात है। ऐसा करके आईने के सामने बिठाने का और बोलने का केशव ये कुछ भी नहीं है। दादा भगवान तो ऐसा बोल देते कि दिन में मेरे को पाँच छह अपमान आए तो मेरे को लॉटरी लगी बराबर है। और हमारे सामने कोई अपमान करता है तो हमको बोलता है कि ये इस तरह से बात की जाती है, ऐसा बिहेव किया जाता है, इतनी भी इज्जत नहीं है। तो आईने के सामने बैठने से, इस तरह से बातचीत करने से क्या होता है, अंदर एक नई शक्ति प्रकट होती है। ऐसी जबरदस्त शक्ति प्रकट होती है कि दिन में अगर 10 अपमान भी आ जाए ना तो भी उसका पेट का पानी नहीं हिलेगा, क्योंकि वो अंदर बार बार वो आईने के सामने बैठ के एक प्रकार की शक्ति डेवलप होती जाती है। एक नई शक्ति दादा भगवान के अंदर प्रकट होती है आईना के सामने बैठने से। तो ये एक प्रयोग करने जैसा है। हम तो बहुत बार ऐसा प्रयोग करते हैं, तो उसमें कभी डिप्रेशन हो जाता है तो तभी भी हम आईने में बैठ के जाके ठपका देते, केशव भाई हम आपके साथ है, क्यों घबराते हो। ये तो सब नॉर्मल है। ये जो भी संसार में होता है कुछ नया नहीं हो रहा है। ये दादा ने एक बार बहुत अच्छा क्लियर किया था कि भाई किसी भी बात में आप एस्टोनिश हो जाते हो, भाई ऐसा कोई हो सकता है, ऐसा कोई कर सकता है। तो बोले ये कौन सी नई बात है, ये तो कितने युगों से ऐसा होता आ रहा है, कौन सी नई बात है, इट इज कॉमन। ऐसा करके अपने आप को ठपका देने का और बोलने का हम बैठे हैं, ये जो हुआ कुछ भी नहीं है। और भी कितने भी अपमान आने का और आओ हमारे सामने, हम बैठे हैं। ऐसा आईने के सामने बोलने से क्या होता है, अंदर से जबरदस्त शक्ति प्रकट होती है। फिर उसके बाद कोई भी संजोग आए ना, आपको हिला नहीं सकेगा। ये दादा की बहुत बड़ी शोध की है कि आईना में सामने बैठ के बातचीत करने का। तो केशव आपने स्टार्टिंग में किया कि अभी भी चलता है कि अभी ऑटोमेटिक हो गया है? आपको क्या नहीं, एक्सपीरियंस अभी का तो है आप? सहज हो गया है। अभी तो सहज हो गया है। कभी भी ऐसा भी कुछ होता है ना, अभी तो आईने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा दिन चलता रहता है। कुछ तो भी ऐसा आपने ये सच, आईने का कब स्टार्टिंग में प्रयोग किया था? बहुत स्टार्टिंग में जब दादा ने ये नई नई बात बताई थी ना, तभी तो हम आईने के सामने बैठ के बात करते थे, बहुत करते थे। अभी तो आईने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हलते चलते बोलते केशव भाई क्या हो गया आजकल, बहुत मूड में आ गए हो, बहुत बहुत दिमाग थोड़ा टॉप पे चल गया तुम्हारा, क्या हुआ क्या है आजकल तुमको। ऐसा वो सब है। अंदर से एक विचार भी आता है ना, तो सीधा बातचीत का व्यवहार चालू हो जाता है। मैं कार चलाते हुए भी बात करता हुआ जाता हूँ कि भाई ये क्या हो गया यार, बात बात में तुम इस बात का एक विचार भी आता है ना, तो भी मैं केशव से बात करना शुरू कर देता हूँ। एक विचार भी आता है। तो ये क्या है, पहले स्टार्टिंग में दादा क्या बोलते हैं, ऐसा प्रैक्टिस करने का। तो धीरे धीरे ऐसा प्रैक्टिस हो जाता है कि आप पूरा दिन भाई जैसे ही लगता है जैसे आईने के सामने बैठे हो, केशव के सामने बैठे हो और केशव को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। ओ वेरी गुड। ओके दीपकांत जी, ओके। नाइन, वेरी गुड, एक्सेलेंट। सो इस तरह से हमें खुद से बात करके खुद के दोष को पकड़ना है, उसका प्रतिक्रमण करवाना है और उसमें से निकल लेंगे। जितना ये व्यवहार शांत हुआ, व्यवहार सहज हुआ, उतनी हम मुक्ति का एहसास करेंगे, अनुभव करेंगे, और वो हम दादा भगवान ने जो बताया ऐसे जिएंगे। बात नहीं करना है, हम जीना सीखते हैं दादा भगवान की आज्ञा अनुसार, जो हमें दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ का अनुभव करवाता है आखिर। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, सच, वेरी गुड। जय सच। तो अभी अभी टाइम हो गया। श्री केशव ने श्रीमंत बोला, दीपकांत जी प्लीज फॉलो। ओ वेट हाँ। वेट वेट एक मिनट, कश्यप भाई। हाँ, मुझे ये वो प्रतिक्रमण का पूछना था, भूल गया। वो आप बताते हैं ना कि जो है कि पार वगैरह के दोष हैं, ऐसा समझ में आता है। तो उसमें जो दोष होते हैं वो बताया था पुत्र जी ने कि वो स्थूल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म मतलब मन वचन काया, और आगे फिर जो मान्यता के और दृष्टि के होते हैं।
तो जो है ज्यादातर जो दोष होते हैं वो दूसरों को जो दुख पहुंचाते हैं ऐसा होते हैं कि जो जो आपने पार वगैरह के दोष बताए हैं वो किस प्रकार के दोष हमारे में जो मतलब अभी हैं वो, और जो अब हमको पता चले अगर पार वगैरह के दोष जो है उनको उनका प्रतिक्रमण कैसा करना चाहिए, क्योंकि पार वगैरह के दोष को का प्रतिक्रमण जो है वो बहुत सारे दोष हो जाएंगे, तो उसका प्रतिक्रमण एक साथ करना चाहिए कि कैसा करना चाहिए जो है वो थोड़ा। नहीं, पार वगैरह के दोष दादा क्या कहना चाहते हैं कि जब आप सामायिक में बैठोगे और सामायिक में बैठोगे तो आपको पार वगैरह के मतलब आप काउंट नहीं कर सको इतने दोष दिखाई देंगे। और वो सुबह से लेके जब हम सामायिक में बैठते हैं ना तो सुबह से लेके शाम तक की जो अब कैसेट रिवाइंड करते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि अरे ये खाते समय भी मेरा उपयोग नहीं रहा और बोलते समय भी मेरा उपयोग नहीं रहा, किसी के साथ मेरा उस समय ऐसा मन में विचार आ गया तो उस समय भी मेरा ये दोष हो गया। तो आप गिनने को जाओगे तो भाई काउंट नहीं कर सकोगे, इतने दोष होते हैं सुबह से लेके शाम तक। इसलिए इसलिए एक शब्द बताया गया कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने पार वगैरह के दोष होते हैं। तो वो एक एक दोष को जब हम सामायिक में बैठते हैं तब उसको पकड़ के एक एक दोष को साफ करना होता है। कोई समूह में दोष नहीं होते, हर एक प्रकार का दोष होता है। वाणी का दोष होता है, विचार का दोष होता है, किधर लालच हो गया दोष हो गया, किसी महात्मा के लिए आपको कुछ विचार आ गया ये कैसे सवाल पूछता है, फलाना हो गया। ऐसे अनगिनत दोष होते रहते हैं। पर हमको पहले क्या था कि पता ही नहीं चलता था क्योंकि हमारा उपयोग ही नहीं था। पर अभी हम छुट्टा हो गए, केशव भाई से अलग हो गए, तो हमारे को जब अलग हो जाते हैं उस समय हमको हर एक दोष का पता चलना शुरू हो जाता है। आपको हर एक दोष पकड़ में आएगा। तो ये दादा का दोष विज्ञान। दोष का पता चले ठीक है, पता चलता है कई बार बाद में भी पता चलता है। तो हाँ उस टाइम मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि उसका प्रतिक्रमण कैसे करना सही रहता है, जो है कि मान लो कि रात को आपने बोला कि थोड़ा जो है वो देखने का कोशिश करने का, ठीक है, कि जो हाँ जो जो दोष उस टाइम छूट गए जो है उस टाइम का नहीं समझ में आया तो बाद में समझ में आया, तो उसमें जो है मतलब आप कैसे करते हैं जो है मुझे थोड़ा सा ये जानना है, हाँ हाँ प्रतिक्रमण कैसे करते हैं जो है। हाँ बरोबर। आप अभी देखेंगे तो सपोज जिस समय सामायिक में बैठे हैं तो आपने देखा कि भैया मैं सुबह को ऐसा जा रहा था कार में तो अचानक रास्ते से एक स्त्री क्रॉस हो गई तो सीधा उसके ड्रेस के ऊपर नजर गई, उसके अंदर शुद्धात्मा नहीं देखा। तो ये उस समय दोष हुआ कि नहीं हुआ? तो उस समय हम क्या करते हैं, हे दादा भगवान मैंने अभी यहाँ पर मेरा दोष हो गया, मैंने उनके अंदर शुद्धात्मा नहीं देखा, ये दादा भगवान मुझे क्षमा करो और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जब भी किधर भी किसी भी स्त्री को देखूं तो मेरे को उसके अंदर सबसे पहले शुद्धात्मा दिखाई दे, ऐसी दादा भगवान मुझे जागृति दो, ऐसे मुझे उसको प्रतिक्रमण बोलते हैं। तो आपने उधर दोष भी हुआ और साथ में उसका प्रतिक्रमण भी हुआ। मतलब वो अब तुरंत हो सके तो तुरंत कर लेने का, नहीं तो बाद में जब भी ध्यान में आए तो कर। हाँ, तुरंत करना बहुत अच्छा है, शूट ऑन साइट जिसको दादा भगवान बोलते हैं। और बाद में कितने इतने स्पीडी दोष हो जाते हैं या हमारा उस समय इतना बिजी शेड्यूल होता है उस समय दोष पकड़ाते नहीं है। तो उसके बाद वो रात को दादा 100% बोलते थे कि उपयोग में बैठो, आधा एक घंटा बैठो, घंटा बैठो, सोने के पहले आंख बंद करके बैठो, उस समय एक एक जो भी दोष हुआ है उस समय साफ करते जाओ। ये जो है मैं इस पे जो आप बताते ना ये आईने के सामने बैठने का जो मेरा तो मतलब इसमें मैं आपका जो ये सत्संग है कई बार बहुत बार सुनता हूँ, वापस सुनता हूँ थोड़ा जो क्योंकि जो फाइन पॉइंट्स है तो उसमें भी मेरे को समझ में आता है, कई चीजें समझ में आता हूँ तो कि पहले के दोष क्या हुए उसमें मेरे को पहले एनालिसिस करने में बहुत अच्छा रहता है। ये ऑनलाइन सत्संग भी जो है एक तरह का हाँ आईना ही है, मुझे ऐसे समझ में आता है। Right, हाँ सही है। right. ठीक है, जय सच्ची। Okay. जय सच्चिदानंद। जय Okay. सच्चिदानंद। अत्री मंत्र बोला हो दीपक आनंद जी, कश्यप भाई प्लीज फॉलो। हाँ। नमो वितरागाय, नमो नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम,
नमो लोई सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानं च सौवेशे परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय श्री जय ज्ञानेश्वर जी। सच्चिदानंद। जय प्रदीप, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरती बहन, कीर्ति बहन, जय सच्चिदानंद। पंकज भाई, जय सच्चिदानंद।